और कोई डाउट हो तो वहीं पूछ लेना। शुरुआत कर चलते। So for today's presentation, my topic is anemia, a most common disease which is found in India. पहले फुल स्क्रीन पे थोड़ा, पहले फुल स्क्रीन तो कर। फुल स्क्रीन किया मैंने फ्रॉम बिगिनिंग, उस पे किया। मैंने फुल स्क्रीन कर रखा है। नहीं, जैसे ये ना, ये इस पे लिखा है फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब सबसे पहला बटन है स्लाइड शो में, ऊपर जो स्लाइड शो टैब है उसमें सबसे पहला वाला बटन है ना, फ्रॉम बिगिनिंग। हाँ ये, हाँ मैंने कर दिया, वही किया है। अच्छा आ गया क्या अभी पूरा? नहीं आया। एक मिनट। नहीं तो इसमें फिर है ना कि जैसे वो, मतलब ये तूने स्क्रीन कैसे करेंगे फिर? विंडो स्क्रीन को शेयर कर, एक बार अनशेयर कर। हाँ ठीक है, वापस से शेयर करो तो उसमें ऑप्शंस आते हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं कि जैसे प्रेजेंटेशन मोड। अब मुझे पता कि उसमें कैसे काम करता है, ये विंडोज में कैसे काम करता है। हाँ ठीक है, आ गया ठीक है, बात ठीक है, यू कैन स्टार्ट नाउ। So for today's topic is anemia, which is a very common disease which is found in India. Because Hina, before you go into that, can you please introduce yourself for just say 1 minute? Okay. So my name is Hina Singhal and I am a second year MBBS student from RUHS Medical College, Rajasthan. So now can I start? Yeah, you can start. Okay. So for my today's topic is anemia, common disease. It's a very common disease, and it's common, and its causes are also very common. Like if you have an insufficient diet, then also you can have an anemia. So that's why it's a very common disease. Like you can find it in most of the people. Okay. So basically, what it is defined technically. It is defined as a total red cell mass. Now, what is total red cell mass? Like in our body, in blood, there is a constitution of the red cells, white blood cells, plasma, and the platelets. Like blood is divided into the liquid part and the solid part. Liquid part is plasma, and the solid part is red cells, white blood cells, and the platelets. Okay. So now, if there is a reduction in the red cells, then we are going to define it as anemia. Okay. From the prescribed amount, that the number of RBC has to be this, and if it is less than that, then you have got anemia. Anemia. Like the normal amount, the normal range is 4.5 million. Like red cells are in millions per cubic meter. Per cubic meter, okay. And white blood cells are in thousands, and the platelets are in lakhs. So basically, all of them are in cubic meters. Per cubic meters. So basically, when we use, like, we cannot count directly the total red cell mass. So we use the different methods like the hematocrit and the hemoglobin concentration. Like if there is a, like, what is hematocrit? First of all, hematocrit is the ratio of the plasma to the red cells. Okay, red cells are present in such a large amount that we neglect WBCs and platelets amount. So we said like 45% is the RBCs, that is known as the hematocrit RBC cells, and 55% is the plasma. Like I have denoted, like the blue one, the yellow one is the plasma, and the red one is the RBCs. Okay, and like I know the hematocrit. What is hematocrit? It's just a ratio between the plasma and the WBCs. Okay. If the RBCs, and if the RBCs are 45%, then the hematocrit is normal, 40 to 45%. Okay. And hemoglobin concentration, as we all know, like RBCs have hemoglobin, a polypeptide chain, so which delivers oxygen to the every tissues. So if there is a reduction in the hemoglobin concentration, then also we said that there is anemia. Like I have depicted in the third figure, you can see like
these are the RBCs. These two are the RBCs, which we have seen microscopically, stained microscopically. Mm-hmm. The first one is hypochromic. That is, the hemoglobin concentration is less. So Sorry, what is the first one? Like in the third picture, the first, which is What was paler the in name the of it? center and What was its name? You said something. hypochromic. Hypo what? Hypochromic. Chromic matlab Hypochromic. color. Okay. Okay. Like hypochromic. It's a hypochromic and it's a normochromic. The second one. Hypochromic and hyperchromic. Hyperchromic means too much colored. Hypochromic means less colored. Because Okay. hemoglobin, whenever hemoglobin is present, then it shows its color. Like, so we have 1/3 we have paler from the center, और periphery पर red color shown होता है. जैसे second side में भी आप देखो तो periphery पे red cells and in the middle there is a paler. Second figure में जिसमें RBC and in the middle one hemoglobin है. Mm-hmm. If I could, आपको cursor दिख रहा है क्या? हाँ. I can see your cursor. Okay. Okay. So like this one is the paler and और ये जो rim पर है that is hemoglobin. तो ये ज़्यादा dark red होता है. और यहाँ पे जो है ये hypochromic है because hemoglobin बहुत कम हो गया तो just periphery पे जाके रह गया है. Okay. So basic. So हम इन measurement से और भी है measurement. So in measurements हम पता लगाते हैं that whether we are having an anemic patient or not. Like when we use to diagnose the patients. Okay. And what about this one? The spherical kind of the thing. In the RBCs are spherical. Like it's. Yeah, this one only. On the bottom right RBCs corner. Are spherical. Okay, this one. On the it's bottom also right RBC, corner. but this one, no? Yeah, is this a normal one? This one is the normal one. Okay. Now, basically, what is hemoglobin? It's a polypeptide. It is having 4 chains. What is peptide? Okay, and peptide is the short, like amino acids. Do you know amino acids? Yes, I know amino acids. Amino acids. So short, like 8 to 10 amino acids form peptides, short peptides. Okay. And like a long chain of amino acids that we know that we call peptide. A long chain of amino acids, peptide, and because there are 4 chains, so we call it as a polypeptide in hemoglobin structure. Okay. And it contains also iron. That is like very important because whenever the patient is having an iron deficiency, then also he's going to suffer with the anemia. And what exactly hemoglobin does? It will going to transport the oxygen to the tissues. Okay. So it is really very important. तो इसकी वजह से सिम्टम्स भी आएंगे. अभी सिकल सेल में इन हीमोग्लोबिनोपैथीज, मतलब जब भी कुछ भी हीमोग्लोबिन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इफ देयर वुड बी एनी डिस्टॉर्शन इन द चेन तो एनीमिया हमें शो होता है. लाइक इन सिकल सेल एनीमिया एंड इन थैलेसीमिया, ये सारे वो हैं. सो हीमोग्लोबिन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो थैलेसीमिया भी एनीमिया का एक फॉर्म है. एनीमा और एनीमिया. In actually in thalassemia what happens is this beta chain or alpha chain, like it depends on the genetics, there is a reduction in the formation of the chain. Formation of what? So instead of the 4, reduction in the formation of the chains, like 4 chains do not form, only 3 will going to form. Okay. Or if there would be a severe case, only 2 will going to form. So the oxygen supply would going to be less. So the person will going to suffer from anemia. And also there is one more thing, like it contains the iron in the ferrous state. And if you have listened about cyanide, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इश्यू है ना? आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इश्यू है.
मेरे कनेक्शन में हाँ अभी सही हो गया, अभी सही हो गया, ठीक है, अभी सही हो गया। ठीक है। So actually I was saying कि iron was in the ferrous state. Okay. हाँ And whenever it will going to convert in the ferric form, हम्म। then also hemoglobin will could not deliver the tissues deliver the oxygen properly. Why is it so? If iron oxidized form है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे तो ऑक्सीजन को उतने अच्छे से कंटेन नहीं करता। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब मैं यही सोच रहा था ना कि जैसे अगर अगर फेरस ऑक्साइड है और फेरिक ऑक्साइड है तो शायद फेरिक ऑक्साइड में जो अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखें ऑक्सीजन का, तो वो फेरिक ऑक्साइड में ज्यादा आएगा कि कम आएगा फेरस ऑक्साइड की कंपैरिजन में? ऐसे नहीं अच्छा ऐसा नहीं अलग है। अलग तरीके के फॉर्मेशंस हैं। अच्छा मतलब ऐसा नहीं ना कि जैसे फेरस ऑक्साइड बनता है या फेरिक ऑक्साइड बनता है, ऐसा नहीं होता है। ना ओके ठीक है। फेरिक ऑक्साइड नहीं बनते, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही कैरी करके करता है, एक चेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करती है। ओके। अच्छा So now और what are the causes of the anemia? प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। अच्छा और इसमें ये you have alpha chain beta chain, so by 4 chains you will mean that you will have alpha beta gamma delta. Is this what the meaning of 4 chains? No. I'm saying there are 2 alpha chains, 2 beta chains. Okay. And इसमें और भी बहुत varieties होती हैं hemoglobins कि this one is the A type, I think 2 alpha 2 beta. Then there are also other types like there is also a HbF 2 alpha 2 delta. Oh wow, okay. So HbF that is present in the fetal. क्या? So how do we differentiate between an alpha chain, a beta chain, delta chain? How do we differentiate between these two chains, these various kind of chains? There are changes in the amino acids. Amino acids, okay. All these are form of amino acids, and Okay. these are all. So if there would be any change in this one sequence, then the whole chain will going to be disrupted. Whole distortions will going to be disrupted. Like if you could see like the first figure, the first one, this one. This is a real picture. Like so real picture में दिखता होगा hemoglobin. So all these are all helices और ये सारे helices हैं, alpha chain, beta chain है, इनके बीच में बहुत सारे bonds हैं. So if there would be any change in one amino acid, तो बहुत changes आ जाते. Like what happens in sickle cell anemia. उसमें just a single amino acid change और पूरा अलग हो जाता है. Wow, okay. So now causes the anemia. And basically what are the causes? कि basically if you have a lot of blood loss, like किसी का accident हो गया तो you can have anemia. And then you have hemolytic anemia. अगर मान लो destruction ज़्यादा हो जाए, if there would be more destruction in the RBCs, or if production is less. Destruction कैसे होता है? Like destruction. If you have heard about spleen. नहीं. No, I'm not able to recall. Spleen is an organ which destructs the RBCs, or which also store the RBCs. And it does the work of the RBCs destruction. Basically, वहीं जाके RBCs का destruction होता है. And exactly what is the mechanism about? मतलब बहुत सारी mechanisms से destruct हो सकते हैं. So मतलब वो details कभी और कि कैसे destruct होता है exactly. नहीं वो मुझे पूछना है कि डिस्ट्रक्ट जैसे स्प्लीन में वो ये आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो यूजफुल है ना बॉडी के लिए. ओल्ड सेल्स में भी ओल्ड सेल डिस्ट्रक्ट होते हैं ऐसा? नहीं, actually RBCs do not have nucleus. Mature RBCs do not have nucleus. All cells have a nucleus. All cells have the capacity to regenerate their proteins, but RBCs do not have its own nucleus after maturation. क्योंकि इसका सिर्फ एक ही काम है, मतलब ये भी एक एनवायरमेंटल एडेप्टेशन है, क्योंकि कुछ एनिमल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट ह्यूमंस में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. बिकॉज़ इट्स एन एडेप्टेशन. हां, आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किन्हीं एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में. हाँ, कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, बट हमारी बॉडी में नहीं है बिकॉज़ इट्स एन एडेप्टेशन कि ताकि ऑक्सीजन डिलीवरी ज्यादा हो सके, हम हीमोग्लोबिन को जगह ज्यादा दे सकें.
सो दैट्स व्हेन न्यूक्लियस नहीं होता और कुछ टाइम बाद फिर जैसे कुछ भी वेस्ट मटेरियल उसमें कलेक्ट होने लग जाएगा, सो दे नीडेड टू बी डिस्ट्रक्टेड। ओके वो इतनी एफिशिएंटली हीमोग्लोबिन को मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दे नीड टू बी डिस्ट्रक्टेड और इनकी लाइफ साइकिल 11-20 डेज। so can we say that as soon as the RBC becomes old, it is destructed in the spleen? Is it the correct way of saying it? Okay. हाँ हाँ करेक्ट, एकदम करेक्ट। और जो फॉर्मेशन करता है वो बोन मैरो करता है, बोन्स करती है। बोन्स में कुछ पार्ट है दैट फॉर्म्स द आरबीसीज। Okay. And if production would be less, what if production would be less, then also then the person will going to suffer from anemia. Okay. So I have given those two examples. Like if there would in sickle cell, what happens? In sickle cell, the shape of the RBC changes. तो जो हमारी बॉडी है उनको आइडेंटिफाई करती है दे नीड टू बी डिस्ट्रक्टेड क्योंकि इनकी शेप सही से नहीं बनी है, तो स्प्लीन उन्हें डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए सिकल सेल में एनीमिया हमें पाया जाता है। Okay. ऐसे ही स्पीरोसाइटोसिस है। स्पीरोसाइटोसिस में जो सिकल सेल्स होते हैं, सॉरी सेल्स आरबीसीज होती है, वो बहुत ज्यादा ऐसे एकदम राउंड हो जाती है। Okay. Usually the shape of the RBC is biconcave, oval. Sorry, what was the shape? Biconcave, oval, like middle से biconcave shape होती है। Okay. मिडिल में biconcave shape होती है, but in spherocytosis वो fully circular हो जाती है, spherical हो जाती है spherocytosis में। तो तब भी बॉडी इसको आइडेंटिफाई करती है कि नहीं, इसको ये abnormal है and that need to be disrupted. And it is not useful for our body. हाँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि कैपिलरीज, जैसे the size of the RBCs are 7 micrometer. And we are having the small arteries, such small arteries that are having the diameter of 1 micrometer. Okay. And the RBCs have to pass through them. So they should have a flexibility. And the spherical shape do not provide that flexibility. Okay. Biconcave shape will going to provide that flexibility. Because spherical, that will going to form a rigid shape. It will not going to provide that much flexibility. That's why the question it has to be destructed because otherwise it will inhibit the flow of RBC through the arteries. So occlusions होने लग जाते हैं, tissues को oxygen नहीं पा पाती और cell की death होने लग जाती है। Okay, got it. Thank you. Got it. और production अगर मान लो कम हो जाए, somehow iron, मैंने as I have said कि iron deficiency. If there would be the iron deficiency, then hemoglobin won't be formed. Like, is there any problem or something? No. What was that? No. There was no problem. Janti sir is not able to hear, I think. Yes, I can. Can I? Okay, sir. Sir, आपको समझ तो आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा आ रहा है, but I am learning. You are smart. Okay. Very nice. Though I have started it some time back. So production यहाँ पे कम हो जाए, मान लो if there would be deficiency in iron, तो hemoglobin नहीं बन, और hemoglobin नहीं बन पा रहा है तो cells mature नहीं हो पाएंगी, तो anemia होगा। aplastic anemia में भी like there is a whole process how the RBCs are formed. There are some cells which will going to form the RBCs. So if there would be some like कोई destruction हो जाए उन cells का या वो बना ना पाए, तो उन cases में भी anemia हो जाता है। Because RBCs won't form. हाँ, RBCs ही form नहीं हो पाती। aplastic इसको इसलिए वो aplastic, इसमें और भी बहुत सारी cells involved होती हैं। Okay. So these are the 3 causes of the anemia. Production destruction ज़्यादा हो जाए, production ही कम हो जाए, या blood का loss हो जाए। So in this slide I've tried to explain about the sickle cell anemia. There are also 8 to 10 types of anemia, but right now मैंने sickle cell anemia है। Okay. अभी the first point is hereditary hemoglobinopathy होती है। hereditary होती है, mother to father ऐसे जा सकती है, sorry मतलब mother to children जा सकती है, father to children जा सकती है।
and hemoglobinopathy because there is a abnormality in the hemoglobin. Mm-hmm. I'm going to explain in the next slide, like how the hemoglobin will going to be changed. What is the pathology exactly? Okay. Okay. Then the second is there is a point mutation in the beta chain. There is a mutation in the beta chain. Like I have said, there is just one change in the amino acid, and the whole pathology is changed. Mm-hmm. Whole function is changed. Mm-hmm. Then, ठीक है, मैं आगे अभी और points आएंगे तो मैं बताऊंगा. Now, exactly what is hemoglobinopathies? I have tried to explain. Like मैंने पहले ही बताया कि hemoglobin में जैसे सिकल सेल हो गया, और अगर मान लो क्वांटिटी कम हो जाती है तो थैलेसीमिया भी इसका एग्जांपल. This one I have already taken. Now, how the point mutation exactly happens? Like there is DNA. This is a DNA, and this is all the amino acids: guanine, adenine, guanine, thymine, guanine. ये amino acids है. Amino acids की sequence है ना? And so there is a mutation. That means this T is converted into the A. Like CTCAC is converted, right? So now this DNA will going to form the RNA. If you don't know about it, like Watson and Crick proposed a model, like how the proteins are formed. Okay. You know, like this one, the DNA will going to be converted into the RNA, and then RNA will going to be converted into protein. This is a whole new level. मतलब ये थोड़ा genetics है. ठीक है. So Watson and Crick said it, like explain it through central dogma. मतलब इसको central dogma बोलते हैं. That DNA will going to be converted to the RNA, and RNA will going to be converted to protein. Now what amino acid will going to be there? It will going to be dependent on RNA. Like this one is a glutamine, and this one is a valine. And this protein glutamine is formed from the RNA, which is having some sequences. Like every sequence is attributed to a protein. Like this GAG is a sequence which will going to form glutamine every time in every animal. And this GAG is formed from the DNA. This one. Okay. And but the CTC will also form. What will happen to that? Because if you have DNA that has this, I mean this sequence. Actually, this when like the formation of the DNA, like formation of the RNA from DNA is known as the transcription. And in transcription, this one is there is a process. There is a different process that is known as transcription. How the CTC, actually the CTC, from CTC only the GAG is forming, and we call it as a template strand. We call it as a coding strand. So a different mechanism is there. How the RNAs will going to be formed from the DNA, how these amino sequences will going to form these amino sequences. What is that GUG in sickle cell? What is that U? Uracil. Actually, this uracil is मतलब ये जो uracil है सिर्फ RNA में present होता है. मतलब ऐसे different है, हाँ वो बहुत ज़्यादा deep है, थोड़ा है. तो मतलब ऐसे different process है जिससे DNA से RNA बनता है, RNA से protein बनता है. अब because ये वाली GAG वाली जो CTC वाली जो sequence थी जो glutamine बनाती थी, and if there is a just a single mutation in this T to A, जो CAC जाके GUG बनाती है, जिसकी वजह से valine बनेगा. आ रहा है थोड़ा मतलब उनका फिर ठीक है, मतलब ये जो म्यूटेशन हुआ उससे जो आरएनए बना तो ये कुछ डिफरेंट यू है, वो कुछ डिफरेंट आ गया है. हाँ, क्योंकि GAG कोड फॉर द GLU मतलब ग्लूटामिन एंड GUG कोड फॉर द वैलिन. फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस GAG GUG. सो नाउ देयर इज अ GUG, देन वैलिन विल गो. ओके. अब valine is a hydrophobic amino acid and glutamine is acidic, so somewhat hydrophilic. Glutamic amino acid की जो structure होती है वो somewhat hydrophilic होती है, और valine की amino acid की जो structure होती है वो hydrophobic होती है. Hydrophobic means water repelling, hydrophilic means water attracting. water repelling. हाँ, water repel करता है. तो फिर अब इसकी वजह, अब इस just
थोड़ी से मतलब उसकी वजह से ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ऐसे साइकिल्स बना लेता है। देखो मैं बताती हूँ। बीटा ग्लोबिन चेन थी, उसमें ग्लूटामिक एसिड से वैलिन बन गया। If there would be glutamic acid, then a normal hemoglobin chain will going to be formed. But if there would be valine, then in the एक सेकंड होता क्या है, हीमोग्लोबिन एस बन गया, हम उसको हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं। मतलब आ रहा है ना, जैसे बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ गया है, उसकी चेन हो गई एचपीएस, जिसको हम एचपीएस बोलते हैं। क्योंकि जीएजी की जगह पे जीटीजी आ गया, तो जीएजी से नॉर्मल हीमोग्लोबिन या नॉर्मल आरबीसी बनता है, लेकिन मतलब क्योंकि वो जीटीजी हो गया इसलिए कुछ उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ, मतलब उसमें चेंजेस आएंगे। मैं वही चेंजेस बता रही हूँ कि कैसे आएंगे। क्या होता है कि जैसे डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म होती है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो जो हीमोग्लोबिन एस जो होता है, हीमोग्लोबिन एस के जो पॉलीमर्स होते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन एस जो होता है वो प्रोटीन ऐसे आपस में इकट्ठे जाते हैं, वो पॉलीमर्स बना लेते हैं। तो वो जब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में थे तब तो अलग अलग थे और नॉर्मली ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा सकते हैं, बट जब डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हो गए तो काफी पास पास आ गए। ओके, है ना, इसलिए इनकी सिकलिन हो जाती है ऐसे, क्योंकि ये बहुत पास पास आ जाता है, ये ऐसे लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। इन सिकलिन में ऐसे लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एक सेकंड कि हीमोग्लोबिन में सिकल सेल्स हमें मिलते हैं, है ना। वो सिकल सेल्स मिलते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो चेन्स थी उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन था उसकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि आरएनए में कुछ चेंजेस आ गए म्यूटेशन के कारण। हाँ एग्जैक्टली। तो हीमोग्लोबिन में चेंजेस कैसे है कि उन्होंने लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना लिए। एचबी जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, एचबीएस और ये डीऑक्सीजनेटेड, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो ऐसे चेंज नहीं बनाता डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। ओके। लेकिन ये जो एचबीएस वाला ये जो है, जो एबनॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन है, ये चेंज बना लेगा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म। ओके एंड समवॉट आई कैन से कि क्योंकि इसमें वैलिन आ गया तो वो हाइड्रोफोबिक है एंड वो बचने की कोशिश करेगा सॉल्यूशन से जब भी डीऑक्सीजनेटेड होगा, तो इसीलिए वो स्ट्रैंड्स बना लेगा, बॉन्ड्स में चेंज आ जाएंगे, उसकी वजह से ऐसे स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। अच्छा, स्ट्रैंड्स वाला मैकेनिज्म क्लियर नहीं, मतलब मुझे ये वाला पार्ट समझ में आया कि जैसे मतलब कि मतलब जो भी आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये कि उसका सिकल सेल जैसा शेप हो जाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। आप एक बार और एक्सप्लेन करेंगी? हाँ देखो जैसे देखो नॉर्मली एचबीएस इज आल्सो अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। What was that? हीमोग्लोबिन मतलब एचबी, हीमोग्लोबिन मतलब एचबी। ओके, हीमोग्लोबिन मतलब एचबी और एस मतलब सिकल एच। ओके, तो एचबीएस वाला जो ऑक्सीजनेटेड में था तब तो वो नॉर्मल रहेगा, उसके जो हीमोग्लोबिन के जो अलग अलग हीमोग्लोबिन अलग अलग रहेंगे। बट जब भी डीऑक्सीजनेटेड होगा, जब भी ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी तो कॉन्फॉर्मेशंस में चेंजेस होंगे समहाउ कि वो स्ट्रेंथ्स बना लेंगे। मुझे एग्जैक्टली स्ट्रेंथ्स की मैकेनिज्म मुझे भी नहीं पता, बट समहाउ मुझे इतना पता है कि बॉन्ड्स में चेंजेस आते हैं। मतलब मुझे पहले एक चीज कंफर्म करनी है कि जैसे ये जो लेफ्ट में है ना, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड वाले हैं क्योंकि कुछ ब्लॉक से दूर हैं, तो ये तब भी हो रहा है जब वो जैसे अभी आपने बताया ना कि जैसे एक म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन में जीएजी की जगह पे जीटीजी, मतलब जैसे डीएनए स्ट्रैंड में ये हुआ कि जीएजी की जगह पे जीटीजी आ गया, तो उससे कुछ चेंजेस हो गए। लेकिन मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये सही है कि जीटीजी आने के बाद भी ऐसा जो अभी लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड है ये उसका फॉर्म है, लेकिन अब अगर ये चेंजेस नहीं आए होते तो हाँ, अच्छा पहला क्वेश्चन ये कि अगर चेंजेस नहीं आए होते तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ये है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म कैसा होता? हाँ वो मैं अभी सोच रही थी, बट मैं वो आपको मतलब अभी तो नहीं है मेरे पास उसकी स्लाइड। ओके हाँ, वो इससे डिफरेंट आता होता तो इसी तरीके से, बट उसमें इस तरीके से स्ट्रेंथ्स नहीं बनते। ओके तो वो ऐसे ही होता है। समझा ओके। मतलब
ऐसे स्ट्रेंथ्स नहीं बनते इसमें, सिर्फ डीऑक्सीजन ये नॉर्मल है, ये बेसिकली नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये बिल्कुल नॉर्मली एक्ट कर रहा है। इसमें एबनॉर्मलिटी यही है कि इसमें स्ट्रेंथ्स बन जाते हैं, वो भी डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, क्योंकि मैं बोल रही थी क्योंकि वैलेन के बॉन्ड्स चेंज हो चुके हैं, तो वो शो हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। ये नॉर्मल ही है, मोस्ट लोगों की नॉर्मल ही है। बस इसने एबनॉर्मलिटी जब दिखाई जब डीऑक्सीजनेटेड होगा, एंड इसीलिए जो सिकल सेल के पेशेंट्स होते हैं ना वो नॉर्मल रहते हैं, अगर उनको ऑक्सीजन सही से मिल रही है, उनको कोई बीमारी नहीं है, दे वुड गोइंग टू बी नॉर्मल। बट अगर उनमें मतलब अगर उनमें ऑक्सीजन की कमी आ गई, हाइपोक्सिक, जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो हाइपोक्सिक अगर हो गए तो तब उनमें ये वाले स्ट्रेंथ्स बनना शुरू करते हैं और सिकल सेल्स हमें दिखाई देते हैं। नहीं तो तभी बनते हैं। मतलब I then have one more question. So क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि अगर जैसे कि एक बार ऑक्सीजन की कमी हुई तो सिकल सेल वाली शेप ले ली, लेकिन अगर जैसे ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई तो क्या सिकल सेल नॉर्मल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, दोनों एक्चुअली इट डिपेंड्स कि वो क्यों डीऑक्सीजनेट, मतलब इट डिपेंड्स कि वो कैसे ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड होगा। इफ ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन की कमी थी, सिर्फ ऑक्सीजन की था, डिहाइड्रेशन हो गया समहाउ, तो वो वापस आ सकता है उस फॉर्म में। बट अगर उसका कॉज है कि मान लो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, उसकी वजह से कुछ हुआ है, मतलब उसकी वजह से उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो इरिवर्सिबल में जाएगी। एक स्लाइड थी पर वो आ नहीं पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलो फिर आगे चलो। ओके, तो अब सिकल सेल्स बन गए, लाइक अब तक थोड़ा बहुत तो आया ना, मतलब कि ठीक है सिकल सेल्स कैसे बने। समहाउ देयर इज अ डिफॉर्मिटी इन द हीमोग्लोबिन चेन, उसमें हीमोग्लोबिन चेन की डिफॉर्मिटी की वजह से वो सिकल सेल हो, बेसिकली यही है। और वो QI डिफॉर्मिटी क्योंकि जेनेटिकली है। थोड़ा ठीक है, समझा, मैं समझा, मतलब मुझे आइडिया लगा। एंड अब क्या होता है, जो सिकल सेल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, तो जब भी वो आर्टरीज के थ्रू फ्लो करते हैं तो वो ब्लॉक करते हैं। तो इसकी वजह से वेसो ऑक्लूजन हो जाता है, मतलब वेसो मतलब वेसल्स, ऐसे इनको वेसल्स बोलते हैं, और ऑक्लूजन मतलब ऑक्लूड हो गए, इसलिए इनमें वेसो ऑक्लूजन हो जाता है। अब इसकी वजह से जहां जहां पे भी ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स को जाना था वो नहीं जा पाता है, मतलब ऑक्सीजन जानी थी जिन जिन टिश्यूज में थोड़ा कम हो भी जाता है, इसकी वजह से भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसमें जनरली वेसो ऑक्लूजन हो जाता है। यही इसमें दिखाया है कि नॉर्मली हीमोग्लोबिन इस तरीके से होता है कि सेंट्रली बाइकॉन्केव, और आरबीसीज फ्रीली फ्लो करती है नॉर्मली, बट जब एबनॉर्मल सिकल सेल हो जाती है तो ऐसे कलेक्ट होके इनको ऑक्लूड करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जहाँ पे भी ये आर्टरी जिस भी टिश्यू में जा रही होगी, ये जो वेसल है जिस भी टिश्यू में जा रही होगी उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी। ओके, अंडरस्टूड। अब मैंने इसके बाद बताया था कि लाइक व्हाट आर द सिम्पटम्स दैट वी गेट इन सिकल सेल एनीमिया। Basically the symptoms would be if like oxygen is not reaching to the tissues, then what will going to happen, like when it will not going to reach to the CNS, like to the brain, the child will be irritable, उसको ऐसे मतलब चिड़चिड़ापन होगा, ऐसे इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है। फिर उसको फैटिग होगा, क्योंकि जैसे जो हमारी जो मसल्स होती हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, बट अब अगर ऑक्सीजन ही कम मिलेगी तो फैटिगनेस आती है, तो वो थक जाती है, तो फैटिगनेस भी हमें मिलती है। इसमें पेन भी होता है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर बहुत आते हैं इससे एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत चक्कर आते हैं, क्योंकि वो वही है कि कई बार ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो चक्कर आते हैं। नॉर्मली सारे एनीमियाज में है चक्कर आते हैं, दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसे मीडिएटर्स, अभी जैसे भाभी ने पूछा था कि क्यों होता है दर्द, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो कुछ मीडिएटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो रिलीज होते हैं, जो नर्व्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं। पेन के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनको जाके स्टिमुलेट करोगे तो पेन फील होता है। नहीं, लेकिन नर्व्स क्यों स्टिमुलेट नहीं फिर? मतलब जैसे इसमें मैं वही बोल रही हूँ कि इसमें केमिकल्स रिलीज होंगे, मतलब जैसे एक प्रोस्टाग्लैंडिन करके वो होता है केमिकल, है ना? नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि
नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ तो मतलब जो भी मतलब जो भी अभी आपने बताया कि कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे उनको पेन रिसेप्टर्स, अभी आपने कुछ बोला मुझे वो मतलब वो मुझे हाँ, वर्ड मैं एक्चुअली बताती हूँ। जैसे मान लो कि जैसे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं किसी टिश्यूज को और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो सेल की डेथ होने लगेगी। तो जब वो सेल डेथ होने लगेगी ना, तो कुछ रिलीज करेगा मीडिएटर्स, कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगा। तो उनमें कुछ केमिकल्स पेन के भी होते हैं। अगर मतलब अगर ऑक्सीजन के ना मिलने पर अगर उसका हो रहा है, ओके ठीक है, समझा। तो वो स्टिमुलेट कर सकते हैं। वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेन के नर्व्स उनको स्टिमुलेट करते हैं और हमें पेन फील होता है। तो तब भी जब भी हम एंटी पेन किलर मतलब वो वाले जो देते हैं, उसमें हम ये सारे केमिकल्स को कम करने के लिए ही देते हैं। ये केमिकल्स रिलीज ना हो, कम हो, ताकि पेन उस इंसान को थोड़ा कम फील हो। थोड़ा आया? हाँ थैंक यू आया। बहुत अच्छे से आ रहा है। तो एक इसमें पेलर हो जाता है। पेलर का ना एक जैसे ये जनरली जब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, तो हम देखते हैं कि जैसे ये इसको बोलते हैं कंजक्टिवा, दिस वन। तो ये थोड़ा इससे पेल दिखेगा कि इसमें थोड़ा पेलनेस आपको अगर दिख रही हो, जैसे ये रेडिश है, ये काफी पेल है। एंड टंग भी काफी पेल होने लग जाती है, नेल्स में भी काफी पेलनेस आती है, हैंड्स वगैरह के अगर बहुत ज्यादा सीवियर होता है तो पेलनेस आती है। तो ये पेलनेस इसलिए आती है बिकॉज हीमोग्लोबिन इज नॉट सफिशिएंट। हीमोग्लोबिन कलर प्रोवाइड करता है रेड, तो इसीलिए ये सारे सिम्टम्स भी मतलब हमें दिखाई देते हैं। इसको पेलर बोलते हैं। फिर है हिपैटोस्प्लीनोमेगली। इसमें ये है बिकॉज स्प्लीन, जैसे मैंने बोला था दैट स्प्लीन डिस्ट्रक्ट्स द आरबीसीज, राइट? यस आई रिमेंबर। एंड नाउ स्प्लीन जो है वो बहुत ज्यादा काम करने लग जाएगी अगर सिकल सेल्स के नंबर्स बढ़ते जाएं। तो क्या होता है, स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है। जब भी स्प्लीन बहुत ज्यादा वर्क करती है तो स्प्लीन एनलार्ज होती है। क्यों होती है मुझे नहीं आइडिया है इसका, तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया है। बट स्प्लीन अगर वर्क करती है तो कुछ सेल्स और भी मतलब प्रोलिफरेट होते हैं, मे बी शायद इसलिए वो एनलार्ज हो जाती है। और सेल्स चाहिए काम करने के लिए, तो प्रोलिफरेशन होता होगा, इसलिए मे बी एनलार्ज हो जाती है। देन देयर इज अ जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है। पीलिया कब होता है? जब आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने लग जाती है। जब भी पीलिया एक्चुअली एक ऐसे प्रोडक्ट की वजह से होता है, एक बाई प्रोडक्ट की वजह से होता है पीलिया। हीमोग्लोबिन का एक बाई प्रोडक्ट होता है। जब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्ट होती है ना, तो कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगी जाके अपनी बॉडी में। तो वो प्रोडक्ट में से ही एक प्रोडक्ट है जो पीलिया को कॉज करता है ना, जॉन्डिस। ओके, and what is that product? बिलिरुबिन। Bilirubin. इसका हीमोग्लोबिन का बाई प्रोडक्ट है। जब भी डिस्ट्रक्ट होगी तो हीम अलग, मतलब हीमोग्लोबिन भी जैसे हीमोग्लोबिन अलग, ग्लोबिन प्रोटीन है। प्रोटीन को जब हम बहुत ज्यादा तोड़ेंगे तो वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है ना। और जो बिलिरुबिन, ये जो कन्वर्जन है ना, ये हिपैटो में होता है, मतलब लिवर में होता है। इसलिए इसमें लिवर का भी बहुत रोल आ जाता है। बट ये सब बहुत सीवियर केसेस में है। नॉर्मली इतने सीवियर होते नहीं है पेशेंट्स एनीमिया से। नॉर्मली उनमें बहुत ज्यादा अगर सीवियर होते हैं ना, तब जाके हमें ये सब कुछ मिलता है। अदरवाइज तो थोड़ा बहुत ही मिलता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा पेलर है, इरिटेबिलिटी है, फैटिक भी हो जाएगा, यही सब मिलता है। पेन होगा, उसके स्वेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि ना सूजन आ जाती है पैरों पे जब भी खून की कमी होती है। क्योंकि क्या होता है, हम जो हमारी जो किडनीज है ना, किडनीज वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है एक्सक्रीट आउट करने का, वाटर को और Na+ सोडियम को। अब जब उसमें जब ऑक्सीजन कम मिलेगी, उसकी जब मतलब अगर हम किडनीज को इतना ब्लड अमाउंट उसको मतलब नहीं मिल पा रहा है, तो वो फंक्शन नहीं करेगी अच्छे से। और अगर वो फंक्शन नहीं करती है तो वो वाटर को और सोडियम को रिटेन करके रखती है।
आ रहा है थोड़ा, वाटर और रिटेन करके रखेगी, यस आई अंडरस्टूड इससे स्वेलिंग हो जाती है, वाटर हम्म। बढ़ जाएगा, वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, स्वेलिंग हो जाती हम्म। है। तो इन जनरल एक टर्म हम ये बोलते हैं कारण वाटर रिटेंशन, ये वही है क्या कि वाटर हाँ हम हाँ बहुत हाँ ज्यादा नमक वाटर खाते हैं तो रिटेंशन, वाटर हाँ हाँ रिटेंशन हाँ बढ़ जाता है? हाँ वही है वाटर रिटेंशन। अच्छा। तो ये है फिर वही पेन होगा, जॉइंट बैक एब्डोमिनल में पेन होता है, तो बेसिकली यही होता है एनीमिया के पेशेंट्स में, यही होता है। और हाँ, सांस लेने में भी कमी आती है, सांस भी नहीं ले पाते हैं, वही ऑक्सीजन की कमी है तो सांस लेने में तो दिक्कत है। ओके और ये स्लाइड है, इसे चलो इसमें एक एडवांटेज है सिकल सेल में, मतलब ना जो अफ्रीकन होते हैं ना, अफ्रीकन उनमें जनरली सिकल सेल का ट्रेट आपको मिलेगा, मतलब 10% से शायद 10% लोग सिकल सेल के मरीज होते हैं। और Okay. ये क्यों होता है? बिकॉज जो एक मलेरिया का एक पैरासाइट है, मलेरियल फॉल्सीपेरम, वो सिकल सेल्स पे ग्रो नहीं कर पाता। और ये जो मलेरिया है ये अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि लोगों की वहाँ अडेप्टेबिलिटी हो गई है कि वो मतलब उनको सिकल सेल ही होते हैं उनके, वो जनरली एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है ताकि मलेरिया उनमें फ्लोरिश ना कर पाए। आ रहा है, मतलब ये इसका एडवांटेज है सिकल सेल। और मलेरिया ज्यादा लीथल है एज कंपेयर टू एनीमिया। हाँ, एनीमिया के पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत सारे एनीमिया के पेशेंट्स आते हैं। अभी मैं भी जब गई थी हॉस्पिटल, बहुत सारे एनीमिया था सब में। ये जितने भी बेलदारी वगैरह करते हैं क्योंकि खाना सही से नहीं खाते, या अल्कोहल पीने वालों को भी एनीमिया हो जाता है। अच्छा ओके। और ये कैसे काम करता है कि अल्कोहल कंजम्पशन से एनीमिया कैसे होता है? मुझे लगा था कुछ अल्कोहल एक्चुअली लिवर में जाके कुछ चीजों को मतलब इंटरप्ट करता है, कुछ साइकिल्स को इंटरप्ट करता है। और लिवर जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाता है मैचुरेशन के लिए, बहुत सारी चीजें प्रोटीन्स बनती है, लिवर बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर का। तो वो प्रोटीन्स फिर बनती नहीं है और जो हमारी आरबीसी है वो मैच्योर नहीं हो पाती सही से, तो एनीमिया होता है। उसमें वो एरिथ्रोपोइसिस जो मैंने आपको बोला था ना, प्रोडक्शन कम हो जाए, एक कॉज बताया था जिसमें प्रोडक्शन कम हो जाता है। हाँ ओके ठीक है, बताया था पहले 3 रीजंस थे। हाँ, तो उसमें भी अल्कोहल का भी रोल था कि जैसे जब अल्कोहल लोग ज्यादा पीते हैं तो उनमें एनीमिया बहुत शो होता है, और अल्कोहल बहुत कॉमन है पीते हैं। ओके एक ये मैंने इसमें ये बताया था कि मलेरिया मतलब कैसे सिकल सेल मलेरिया पर एडवांटेज है। क्या होता है कि जो मलेरिया होता है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा किसी भी सेल की, वो आरबीसी पे जाके ही अफेक्ट करता है मलेरिया। तो मलेरिया जो है वो कंज्यूम करेगा वहां की ऑक्सीजन को, है ना? ओके अब जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी तो सेल क्या हो जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड। वो सिकल सेल बनेगी। ओके और अगर वो सिकल सेल बनेगी तो स्प्लीन उसको क्लियर करेगा, और जब स्प्लीन उसको क्लियर करेगा तो वहां पे मलेरिया भी क्लियर हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म से भी हमें फायदा मिलता है सिकलिंग में, क्योंकि अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता तो वो सिकलिंग कॉज नहीं करता और ना स्प्लीन उसे मारता, तो मे बी वो मलेरिया भी बच जाता। वो अपनी 120 डेज की साइकिल, क्योंकि एक नॉर्मली एक आरबीसी जो होती है वो 120 डेज की साइकिल को कंप्लीट करती है, बट एक सिकल सेल जो होता है उसकी साइकिल हो गई कम, क्योंकि वो स्प्लीन के पास तुरंत जाएगा कि इसकी डिफॉर्मिटी है, चेंज है शेप में, तो ये जाना चाहिए, डिस्ट्रक्ट होना चाहिए। ओके बॉडीज में पूरे मैकेनिज्म्स हैं, तो वो उसको लेके जाएगा, तो मलेरिया भी वहां पे डिस्ट्रक्ट हो सकती है। स्प्लीन में होते हैं, स्प्लीन एक है लिम्फोसाइटिक ऑर्गन है, स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है पैथोलॉजी को मारने का। नहीं तो ये ऐसा नहीं कि जैसे अभी अब जब बता रही थी कि मलेरिया शायद जो भी मतलब मैंने प्लाज्मोडियम सुना है, जैसे प्लाज्मोडियम एक प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। अच्छा आप वही बता रही थी कि जैसे ये मलेरिया का प्रोटोजोआ है, कि जैसे अगर सपोज कोई मॉस्किटो बाइट होती है तो वो अंदर चला जाता है, तो अभी जैसा बता रही है कि तो फिर वो उसके अंदर चला गया क्या, ये जो प्रोटोजोआ है वो सिकल सेल एनीमिया के अंदर चला गया, और फिर क्योंकि वो सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्ट हो गए हैं इसलिए अब जो स्प्लीन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी और साथ में वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ होगा।
ओके स्किन उसको तुरंत डिस्ट्रॉय करेगी क्योंकि वो इतनी अच्छे से अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर ही नहीं पाएगा। ओके एक ये होता है कि सिकलिंग, जब जैसी सिकलिंग होने लग जाती है तो कुछ जैसे क्या होता है कि अगर मान लो मलेरिया आया है तो वो अटैच होने की कोशिश करेगा, किसी भी सेल मेम्ब्रेन से अटैच होने की कोशिश करेगा, बॉडी के टिश्यूज से अटैच होने की कोशिश करेगा। तो जो मलेरिया है वो कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करेगा ताकि वो एडिशन में हेल्प करे। मलेरिया मतलब मलेरिया को प्लाज्मोडियम जो है प्रोटीन्स को रिलीज करेगा ताकि वो एडिशंस में हेल्प कर सके। बट सिकलिंग एडिशन मतलब एडिशन एडिशन ऑफ एडिशन व्हाट? एडहेशन, एडिशन ऑफ ADHESION। हाँ एडिशन, ओके एडहेशन, ओके। दिस वन। तो वो प्रोटीन जो है एडिशन में मदद करता है, बट इन सिकलिंग दैट प्रोटीन डू नॉट फॉर्म इन दैट प्रॉपर अमाउंट, so adhesion were also going to be decreased. So that's how there is an advantage over the malaria. Okay. Okay. हिना जनरली ये भी देखते हैं ना कि एनीमिया विमेन में ज्यादा होता है, मेन में कम होता है, जैसे आपने अल्कोहल वगैरह रीजन बताए। एक्चुअली वुमेन में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो मेंस्ट्रुएशंस की वजह से। ओह अच्छा। आयरन काफी ज्यादा लॉस होता है उसमें, बहुत आयरन लॉस होता है, तो इसलिए वुमेन्स में बहुत कॉमन हो जाता है। तो वो वापस जनरली हमें वापस से प्रोड्यूस नहीं होता है क्या? जितना लॉस होता है वो आयरन नेचुरली वापस बनना चाहिए ना, मतलब अगर ये नेचुरल प्रोसेस है तो। आयरन एक्चुअली क्या होता है, हाँ। आयरन इज टेकन फ्रॉम द डाइट, तो उसको फिर डाइट बहुत ज्यादा लेनी होती है। मतलब हम वुमेन्स को ये दिया जाता है कि यू शुड हैव अ डाइट प्रोटीन लाइक Fe रिच डाइट, आयरन रिच डाइट। और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मतलब आयरन का लॉस होता है, मतलब तब भी बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, इसलिए आयरन की लेते हैं हम, आयरन रिच फूड लेने होते हैं। ओके, मतलब ये लॉस वुमेन्स में ज्यादा है। इन जनरल हीमोग्लोबिन भी विमेन में कम होता है कंपेयर टू मेन, तो ये सब हाँ वो जनरल हाँ फिर इसलिए आयरन की कमी आ जाती है। लाइक देयर इज अ डेटा दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 1 ग्राम पर डे इन मेन बट 1.5 ग्राम पर डे इन वुमेन। ओके, तो उनको ज्यादा चाहिए आयरन, तो इसीलिए उनमें एनीमिया के बहुत ज्यादा पेशेंट, एनीमिया बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट इनहिबिटर्स दे सकते हैं डीएनए के सिंथेसिस में। जैसे अगर मान लो अगर हमने इनहिबिटर्स दिए, डीएनए नहीं बन पा रहा है तो सेल्स भी मैच्योर नहीं होंगी, सेल्स भी कम बनेंगी। तो अगर मान लो अगर हमने डीएनए मतलब सेल्स ही नहीं बना रहे तो यहाँ पे सेल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी ना। मतलब दिस वन, ये जो है ब्लॉक कर रहा है, सिकल सेल्स का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब जैसे हम जनरली इसमें डीएनए इनहिबिटर्स क्यों देते हैं कि जैसे सेल्स कम बनेंगी तो ओक्लूजन। कैन वी से कि जो वो म्यूटेशन रहता है somehow हम इनहिबिटर्स डाल के वो म्यूटेशन को रोक रहे हैं। हाँ बट मैं मतलब मेरे दिमाग में आता है कि फिर देन नॉर्मल आरबीसीज इज आल्सो गोइंग टू फॉर्म लेस। नहीं लेकिन मतलब जैसे जो मुझे समझ में आया वो तो ऐसा था ना, क्योंकि म्यूटेशन हो रहा था कि जैसे जो भी था जीएजी से जीटीजी में, वो जो भी है मतलब म्यूटेशन के कारण जीएजी से जीटीजी हो रहा था और इसके कारण ये सब हुआ। लेकिन फिर इनहिबिटर्स का मतलब ये ना कि देने का मतलब कि समहाउ वो म्यूटेशन को हम रोक दें या कम कर दें। नहीं, वो म्यूटेशन को हम नहीं रोक सकते क्योंकि वो म्यूटेशन एक्चुअली दैट वाज इनहेरिटेड, वो तुम्हारे जायगोट से लेकर सारी सेल्स में है, वो हो चुका है। तो वो हम स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ बट उसके लिए जीन थेरेपी होती है, मतलब जिसमें हम दूसरे सेल्स देते हैं, दूसरे आरबीसीज को देंगे या तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे ऑल दो, और या फिर जीन की थेरेपी होती है जिसमें हम ऑल्टर्ड डीएनए कुछ प्रोवाइड करते हैं या किसी सेल में जाके उसके बोन मैरो में जाके उसके जीन को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि जहां से बन रही है वहां से तो सही बने। तो उसके जीन्स में इनहिबिटर्स इज डिफरेंट कि हम आरबीसीज ही कम मतलब आरबीसीज की फॉर्मेशन कम हो रही है तो ये जो ऑक्लूजन हो रहा है ना ये कम हो जाए, क्योंकि इसमें बेसिकली ऑक्लूजन की वजह से आ रही है सारी की सारी जो आ रही है ना, क्योंकि ब्लड मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। या हम एचपीएफ, मैंने आपको बताया था याद है कि जैसे 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं,
ओके तो हम उसको बोलते हैं HbA। ए मतलब नॉर्मल, एडल्ट में प्रेजेंट होता है HbA। ओके अगर हीमोग्लोबिन सिकल है 2 अल्फा 2 बीटा जो एबनॉर्मल है, तो हम उसको बोल रहे हैं HbS। एक ऐसी HbF भी होता है जो फीटल मतलब फीटल में प्रेजेंट होता है। न्यू फीटल इनबॉर्न में मतलब जो जो अभी न्यू इनबॉर्न और उसके, हाँ जो इनबॉर्न नहीं है, ओके फीटल वही है मेनली, है ना, और वो 6 मंथ्स के बाद कम होता चला जाता है HbF का लेवल। तो इसमें होता है डेल्टा चेन। इसमें क्या होता है, इसकी एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन से वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है इसकी एफिनिटी HbF की, हीमोग्लोबिन की। तो अगर हम इसके अमाउंट को समहाउ बढ़ा दे तो ऑक्सीजन प्रॉपर रीच हो जाएगा। मतलब समझ रहे आया क्या? नहीं मतलब ये आपने ये बोला ना कि जैसे ये वाला जो है HPF के जो लेवल्स हैं ये शायद छोटे बच्चों में ज्यादा होते हैं तो अगर हाँ और लेकिन लेकिन एडल्ट में बहुत कम। हाँ तो वही कि अगर ये लेकिन HPF में कुछ एफिनिटी होती है और ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी ऑक्सीजन करने से, की तो क्योंकि हाँ पहले हाँ से सिकल सेल एनीमिया हो गया है जो कि ऑक्सीजन को कम कैरी करता है तो अगर हम एडल्ट्स में भी जो जिनमें HbA है HbA की जगह HbF कर दें तो उनमें भी वो जो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की वो पूरी हो जाएगी। हाँ ऐसा। ओके ओके ठीक है और एक चीज और, जैसे सारी सेल्स सिकल नहीं होती हैं, कुछ सेल्स नॉर्मल भी होती हैं। इनफैक्ट 60% नॉर्मल, 40% सिकल की होती है। हम्म ये डिपेंड करता है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है, मतलब कौन सी जीन ने प्रोटीन बनाई ओके है ना? ठीक है, बस यही था। तो समहाउ सिकल सेल क्यों हुआ, किसकी वजह से होता है और उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं और उसके क्या ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, ये सब। ओके ठीक है थैंक यू। ठीक है तो आप में से किसी और के मैं तो ढेर सारे पूछ ली मैं तो ठीक है क्योंकि मुझे समझ में आया तो इसलिए मेरे क्वेश्चन भी मुझे समझ में आया तो अगर आप लोगों के निखिल और ज्ञानती ऋचा आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन हैं मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि जैसे हमने ये इसको प्लान किया था कि दिस हैज टू बी कंप्लीटली इनफॉर्मल यू कैन जस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस एज आई वाज डूइंग। हाँ मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम है कि अच्छा ऐसे क्यों होता है, कुछ भी पूछ सकते हो। अच्छा तो आई ठीक जस्ट वांट टू से बहुत अच्छा सेशन था। ओके थैंक यू। yes from my side also the presentation was really good and I mean you explained really well मतलब क्योंकि हमारा तो फील्ड डिफरेंट है और मतलब मुझे भी समझ में आ गया तो शायद बहुत लोग समझ सकते हैं। हाँ वही एग्जैक्टली, मैंने बहुत इसीलिए बहुत बेसिक से रखा था हम्म। और कम स्लाइड्स रखी। हम्म। ठीक है तो अगर और के क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं लेकिन हाँ एक मिनट मैं अब इसको जस्ट